Hello everyone, I hope all of you are having a fantastic Prime Day celebration. I'm so happy to come in front of you and make you guys laugh, at least I'll try to. Amazon Funnies on Prime Day, it can't get better than this. Blah, 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 blah. This is Rahul Subramanian from his house, and I hope you're watching this not from your bathroom. If you are, then please flush your phones. There goes half my audience, guys. And thank you for the rest of you for not watching this from your washroom, even though you're not wearing any pants. Seriously, why is my audience like this, yaar? Guys, please wear pants. Unless you're wrestlers, which also happens to be the topic for today, wrestling. See how I smartly made it sound so seamless? Wrestling. मेरा बचपन का दूसरा प्यार. पहला प्यार प्रिया थी. And Priya, if you're watching this, please मेरा sharpener return कर दे यार. मतलब 20 साल हो गए यार. Let me start with the wrestlers I really admired. Hulk Hogan, Tatanka, Kamala, Papa Shango, Mummy Mango, and of course Geeta Babita. हमारी छोरिया Big Show से कम है के. But growing up, my favorite wrestler Undertaker था. Sorry, Undertaker थे. Respect. उनको जितना भी मारो ना तो वो ऐसे खड़े हो जाते थे. Just like an engineering student after a mechanics paper. मैकेनिक्स पेपर देते थे, फेल हो जाते थे, फिर ऐसे खड़े होकर वापस देते थे, फेल हो जाते थे, वापस देते थे, फेल हो जाते थे, वापस देते थे. Did they ever give up? No, because they didn't have an option. बहुत कम लोग को पता है कि अंडरटेकर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था. In short, what I'm trying to say is that every engineering student is Undertaker, dead man walking. East or west, mechanics is the worst. What I loved most about Undertaker was his entry. घंटी बजती थी और एकदम से अंधेरा हो जाता था. एक बार तो पापा टेंशन में आ गए. उनको लगा टीवी खराब हो गया. उन्होंने तो सर्विस सेंटर भी कॉल कर दिया. Then I told him, पापा, it's just Undertaker का एंट्री. Then that's when my dad heaved a sigh of relief. क्योंकि टीवी के बिना वो क्रिकेट पे सट्टा कैसे लगाते? Just kidding guys. वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते. एक बार घर पे लाइट चली गई तो मम्मी टेंशन में आ गई. उनको लगा अंडरटेकर घर आ रहे. Then I was like, no मम्मी, ये तो क्योंकि हमने बिजली का बिल नहीं भरा ना, इसलिए. That's when मम्मी heaved a sigh of relief. क्योंकि उन्होंने खाना तो सिर्फ 4 जन के लिए बनाया था ना. Just kidding guys, मम्मी है, कुछ ना कुछ तो बना ही लेती. What I didn't like about Undertaker's entry was वो बहुत स्लो आते थे यार. और उस टाइम तो हमारे पास skip intro का ऑप्शन भी नहीं था. This one time he was so slow in reaching to the ring. By the time he reached, opponent ने 4 बर्थडे मना लिया था. He had changed as an individual. He had grown as a person. He had done Vipassana in Himalayas, solved daddy issues in therapy. In short, he had become a better human being. By the time Undertaker reached the ring, he was like, bro, I don't think we need to fight, bro. We can just talk it out. Peace, bro. One more thing I love about Undertaker कि वो काफी बार मर के जिंदा हो चुके हैं. इतनी बार कि मैं कन्विंस्ड हूं कि उनकी मां राखी है. मेरे अंडरटेकर आएंगे, जमीन का छाती फाड़ के, आसमां का लिवर तोड़ के, स्ट्रेटोस्फीयर का किडनी स्टोन चबा के, मेरे अंडरटेकर आएंगे. अंडरटेकर इतनी बार मर के जिंदा हो चुके हैं कि जॉन स्नो उनके सामने इंटर्न लगता है. अंडरटेकर इतनी बार मर के जिंदा हो चुके हैं कि उन्होंने सारा सनसाइंस कवर कर लिया है. ग्रेवयार्ड के लोग उन्हें लॉयल्टी कार्ड दे रहे हैं. उनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं, डेथ इंश्योरेंस है. इनफैक्ट वो खुद के कॉफिन के अंडरटेकर भी खुद ही है. In short, what I'm trying to say is Undertaker never says YOLO. He says NODO. Never only die once. And I will not apologize for that joke because YOLO. Now, while Undertaker was dying every single time, there was someone else who was almost dying in a wrestling game. The referee. Now, how do you identify a referee in a wrestling game? Number 1, why are you identifying a referee? Number 2, उनका यूनिफॉर्म यूवेंटस का जर्सी था. Number 3, they were the tiniest people on screen. यार इतना छोटा रेफरी, why will a wrestler ever be afraid of this छोटा recharge? There should be at least some minimum height requirement, ना? I feel so bad for his wife, यार. Every time before he used to go for work, she would have been so worried. यार तुम इतना डेंजरस काम क्यों कर रहे हो? यार मेरा काम में रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट. रिंग में मुझे रेस्पेक्ट है. तुम्हारा भाई डॉक्टर है, तुम्हारी बहन साइंटिस्ट है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे रिंग में रेस्पेक्ट है मेरा, रेस्पेक्ट. Till I don't do 1 2 3 from the ring, no one is free. फिर काम पे जाता है और शाम को वापस आता है लंगड़ते लंगड़ते, आंग में पट्टी बांध के. एंड वाइफ इज लाइक, अरे अभी क्या हुआ? गलती से मैं चेयर पे गिर गया.
आज चेयर से मारा, हे भगवान क्या मिलता है तुम्हें ऐसे काम करके। वो बैकस्टेज सबने ताली मारा मेरे लिए। ताली, एटलीस्ट वो चेयर तो दे देते, कपड़े सुखाने काम आ जाते। ताली लेकर आया पड़ा। अपार्ट फ्रॉम टाइनीनेस, वन मोर क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ रेफरी वाज रियली बैड एक्टिंग। थोड़ा सा भी स्क्रीन टाइम क्या मिल जाता था, दे यूज्ड टू गो ओवरबोर्ड, गाड़ी का वाइपर बन जाते थे। नो 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 नो, आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड द रेसलर्स टू बीट देम अप। दे यूज्ड टू स्टॉप इन बिटवीन एंड लाइक, ब्रो ये क्या चल रहा है यार, इतना ओवर एक्टिंग कौन करता है यार। एक काम करते हैं, पहला इसका 1 2 3 करते हैं, कैन यू प्लीज पास मी द चेयर। श्योर ब्रो, चेयर देते थे, मार देते थे। और रेफरी जब गिर जाता था, नो वन केयर्ड मैन। डज नॉट हैपन इन एनी अदर स्पोर्ट। अगर क्रिकेट में अंपायर को लग जाए तो द गेम स्टॉप्स, पर यहां पर रेफरी को मार दिया तो क्राउड सीटियां बजा रही है, कमेंटेटर्स पागल हो रहे हैं, एवरीवन सो हैप्पी। वो गिरा पड़ा है वहां पर, एटलीस्ट समवन चेक, डॉक्टर बुलाओ। नहीं, पर रेसलर्स को तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पुअर गाय इज लाइंग ऑन द फ्लोर, 10 मिनट से 1 इंच नहीं मूव है। एटलीस्ट चेक करो यार वेदर इज ब्रीदिंग और नॉट। मर गया तो रेफरी है, अंडरटेकर थोड़ी ना दैट ही कैन कम बैक फ्रॉम द डेड। कॉल बैक। The only thing that got trashed more than the referee was the commentator's table. वो commentator's table ना मेरे दिल की तरह नाजुक है, इतनी बार टूट चुका है। I feel so bad for the carpenter जिसके पास ये वापस जाते थे। क्या फिर से टूट गया? कैसे टूटा? वो उस पे ना कुछ गिर गया। क्या गिरा? वो अपना ग्रेट खली है ना, ग्रेट खली। हाँ, क्या गिरा है उसने? नहीं, वो खुद गिर गया 10 फीट की ऊंचाई से। क्या? ग्रेट खली गिर गया उसपे? हाँ, आपने कहा था ना वो उस पे वेट रख सकते हैं। अरे वेट रख सकते हैं मतलब चावल रखो, पोहा रखो यार, 5 किलो रखो, 10 किलो रखो। ग्रेट खली थोड़ी गिर सकते हैं यार उसके ऊपर। सॉरी। अरे क्या सॉरी यार, ये आखिरी बार है। तुम 6 महीने के वारंटी में 50 बार रिपेयर नहीं करा सकते हो यार टेबल। हाँ, इसमें रखो फ्लावर वास रखो, बुक्स रखो, चावल रखो, कुछ भी रखो, बट नो होमोसेपियंस, ओके? आगे से अगली बार प्रॉमिस। Of course that promise was broken, just like my heart when I first came to know that wrestling is scripted. I still remember the fateful day. स्कूल के कैंटीन के बाजू में जो वाटर कूलर था, उसके नल में मैं चुपचाप चौक भर रहा था। Basically I was minding my own business. अचानक से वहां करण आ गया। करण, हमारा क्लास मॉनिटर। करण इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो टीचर को याद दिलाता था कि वो होमवर्क चेक करना भूल गई। कमीना करण आके झाड़ने लगा अपना नॉलेज। Did you guys know wrestling is scripted? It's all fake. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये है, हेडमास्टर वो है। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट कांट फ्लाई। You guys didn't know ना? तुम्हें नहीं पता ना wrestling scripted है? No करण, we did not know. And thank you हमारी खुशी छीनने के लिए हमसे। क्या मिल गया ये नॉलेज झाड़ के? इससे अच्छा दोस्त बना लेता। एंड करण, आई होप यू आर वाचिंग दिस बिकॉज आई वांट टू आस्क यू, क्या उखाड़ लिया इतने नॉलेज का? क्या कर रहा है तू आजकल लाइफ में? हाँ, होलसेल में इको फ्रेंडली झाड़ू ही तो बेच रहा है, एंजॉय। और 4th स्टैंडर्ड में जो तेरा सुपरमैन का शार्पनर घूम गया था ना, मैंने ही चुराया था। एंड लाइफ में कभी नहीं लौटाऊंगा तुझे। प्रिया प्लीज मेरा सुपरमैन का शार्पनर लौटा दे यार, 20 साल के ऊपर हो गया यार, कम ऑन, कितना रिमाइंडर दूं तुझे। Anyway, we were talking about wrestling. A lot of wrestling fans get this. Why do you watch this even when you know it's scripted? अरे scripted है तो क्या हुआ? Even movies are scripted, right? Don't we watch movies? तुमको क्या लगा हीरो हीरोइन जो गाना बनाते हैं ऑन द स्पॉट कंपोज करते हैं? If they actually did that, it would go something like this. तुम्हारी जुल्फे जो है जैसे ये जुल्फे के साथ क्या राइम होता है? कुत्ते ना, लम्हे ना, लैम्बोर्गिनी। हाँ, लेट्स गो विद लैम्बोर्गिनी। ऐसा होता गाना। माना कि थोड़े गाने देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो स्क्रिप्टेड नहीं है, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना। लॉट ऑफ थिंग्स आर स्क्रिप्टेड एंड वी स्टिल एंजॉय। ये शो को ही ले लो, ये भी तो स्क्रिप्टेड है। आई नो आपको लगता नहीं है क्योंकि मेरा एक्टिंग इतना अच्छा है, बट इट इज स्क्रिप्टेड। ये देखो स्क्रिप्ट है मेरे पास। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से is that I will watch wrestling irrespective of whether it's scripted or not, and none of you can stop me. Only one person can stop me, and that is ऊंचा कर पाऊं भाई, ऊंचा कर।